Hello everyone, welcome to the class. So it is the continuation of the resources chapter. In the first class, we have discussed technology, what is patent. Today we will be discussing the types of resources. Okay, so this is the first chapter of the geography section from NCERT syllabus class 8th. Okay, so let's start with our class. Types of resources. Okay, resources are generally classified into natural, human, and resources are generally classified into natural, human made, and human. So, what does it mean? Resources, the types of resources are: first is natural resources, second one is human made resources, that means which are made by the human beings, and third one is human. That means it is classifying human itself as a resource. ठीक है, वो human beings को ही एक resource बता रहा है. Okay, we will learn in detail about this. So let's start. First we will be starting with natural resources. ठीक है? Okay. So resources that are drawn from the nature and used without much modification are called as natural resources. So these are the resources which we get from the nature, and these are used without doing any much modification. Modification means here is change. That means changing its form. We are using it directly. Okay, मतलब नेचुरल रिसोर्सेस को इन्होंने कुछ ऐसे तरीके से समझाया है कि ये वो रिसोर्सेज है जो कि हमें नेचर यानी कुदरत से मिलते हैं, और हम इनको बिना ज्यादा कुछ इनमें बिना कुछ ज्यादा बदलाव किए, मतलब थोड़े बहुत हो सकता है बट ज्यादा नहीं, इनमें बिना कुछ ज्यादा बदलाव रिसोर्सेज. ओके, सो उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं आगे: द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. सो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं हमारे? एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स. ठीक है? Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in best possible way. ठीक है? तो इन्हें एक तरीके से हम नेचर के गिफ्ट्स की तरह ले सकते हैं. ओके, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द गिफ्ट which are given to us by the nature. ठीक है? And in some cases, tools and technology may be needed to use the natural resource in the best possible way. So कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जिसमें हमें थोड़े उनमें बदलाव किया जा सके. हमें कुछ एडिशनल टूल्स चाहिए ताकि हम उन रिसोर्सेस को और ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सके. ठीक है? कि एग्जाम्पल देखो, अभी समझो सॉइल है. ठीक है? तो अब जब हम उसमें कुछ भी क्रॉप्स ग्रो करना चाहेंगे, तो उसको सॉइल आप देख सकते हो कि खेत पे ट्रैक्टर घूमता है. ठीक है? जब हाँ, जब उनमें हम बीज बोते हैं तो उसके बाद उसको सॉइल को एक तरीके से मिक्स करने के लिए एक वो एक प्रोसेस रहता है जिसपे ट्रैक्टर का यूज है. तो यहाँ पे वो ही बताया गया है कि कुछ टूल्स या फिर टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है ताकि हम उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करें. ठीक है? Natural resources can be broadly classified or categorized into renewable and non-renewable resources. ठीक है? तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को ना कि रिसोर्सेज को सिर्फ जो रिसोर्सेज है हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे. ठीक है?
सो ये कहते हैं renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. Yet, careless use of certain renewable resources like water, soil, and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the world today. ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब वो है जो कि विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, मतलब जो कि रीफिल हो जाते हैं। रिप्लेनिश्ड यानी कि रीफिल, अपने आप जब भी अगर थोड़ा हम यूज करते हैं वो खत्म हो जा रहा है तो वो अपने आप फिर से नेचुरली रीफिल हो जाता है, उसे कहते हैं हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जैसे कि हो गया हमारा विंड, सोलार। ठीक है, सोलार मतलब जो सन की जो धूप रहती है ना, आप उसे कितना भी इस्तेमाल करो वो खत्म ही नहीं होता है। पर उन्होंने आगे हमें वार्न भी किया है कि अगर हम उनसे केयरलेसली यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ खराबी या फिर उनकी कमी आ सकती है। जैसे कि अब हम पानी पानी का हम इस्तेमाल बहुत ही केयरलेसली करते हैं, यू नो, nowadays we are using water carelessly. Okay, we are using water like anything. We are our water resources are getting depleted day by day. Our rivers are getting dried up, lakes are getting dried up, ponds are getting dried up. Why? Because in the name of urbanization and modernization, ठीक है, शहरीकरण यानी कि जो अर्बनाइजेशन है उसके नाम पे हम लोग यू नो डेवलप करते जा रहे हैं, शहरों को डेवलप करते जा रहे हैं। Okay, we are in the name of this urbanization, we are cutting the forests. Okay, we are trying to change the flow of rivers. On the banks of river we are constructing buildings, so that is making the change in the flow of river, which in turn makes the river to get dried up. Okay, तो इन सभी कारणों के वजह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज की भी हमें कमी हो सकती है। हम ऐसा ना सोचे कि वो अरे वो नेचर से है अपने आप रिफिल नहीं। अगर हम उसे केयरलेसली यूज करेंगे तो वो एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो भी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वो दिन आ गया तो ह्यूमंस का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, if a day comes when the renewable resources get totally finished off, that means they are not getting renewed or not getting replenished, that may be the end of the human breed on this earth. Okay, सोचो अगर पानी ही नहीं रहेगा, how the living organisms will survive on this earth? All the living organisms need water to survive. ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम चलते हैं नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल हो गया, अब हम चलते हैं नॉन रिन्यूएबल की तरफ। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच हैव लिमिटेड स्टॉक। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. ठीक है, since period is much more than human lifespans, such resources are considered non-renewable. Examples are coal, petroleum and natural gas. ठीक है, so non-renewable resources वो है जो कि easily refill नहीं होते हैं, replenish नहीं होते हैं, और इनको refill होने में thousands of year लग जाते हैं। ठीक है, so non-renewable resources are those which do not get refilled or replenished easily, or which takes thousands of years to get replenished. Okay, so here we got a glossary. Stock of resource, what does that mean? Stock of resource, it is the amount of resources available for use. Stock of resource मतलब
किसी भी एक चीज, अब समझो कोल लेते हैं, तो कोल हमारे पास कितनी अवेलेबल है यूज करने के लिए, उसे उस स्टॉक, वो क्वांटिटी को हम कहते हैं स्टॉक ऑफ रिसोर्स। ठीक है। नेक्स्ट, the distribution of natural resource depends upon the number of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of resource is unequal because of these factors differs so much on over the earth. ठीक है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज किसी कंट्री के पास होते हैं, वो किन चीजों पे डिपेंड होता है? टेरेन, ठीक है, और वो कंट्री का अल्टीट्यूड, मतलब वो अर्थ पे कहाँ सिचुएटेड है, कितने सी लेवल पे है, वो किस लॉन्गिट्यूड पे है, किस लैटिट्यूड पोजिशनल पे है। ठीक है, उन सभी फैक्टर्स पे एक कंट्री का नेचुरल रिसोर्स डिपेंड होता है। जैसे कि इन इंडिया, हम इंडिया की बात करते हैं, तो हमें बहुत सारे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेस हमारे पास कौन कौन से हैं? सोलार हो गया, ठीक है, यानी कि धूप हमें बहुत ज्यादा मिलती है। पानी हो गया, हमारे पास बहुत ज्यादा पानी है। और नॉन रिन्यूएबल की अगर हम बात करें तो हमारे पास कोल है। ठीक है। वही अगर हम अरब कंट्रीज की बात करें, ईरान, इराक, वहां पे पानी की मात्रा बहुत कम है। ठीक है, बिकॉज वहां का क्लाइमेट वैसा है, वहां की जमीन वैसी है, और वो जो जहाँ पे वो सिचुएटेड है, वो वैसी ही जगह पे है जहाँ पे पानी का बनना, ठीक है, मतलब नेचुरली रेन होना। पानी हमें कहाँ से आता है? जब बारिश होती है, तो वो एरिया पे नेचुरली प्रोसेस होता है, वेपराइजेशन होना, एवोपरेशन होना, उसके बाद फिर से बारिश होना। तो वो वहां पे ठीक तरीके से, इसलिए वहां पे पानी की कमी होती है। तो वहां पे पानी का, पानी की कमी बहुत ज्यादा होती है। पर वहां पे पेट्रोलियम के माइंस है, पेट्रोल माइंस है, तो वहां से हमें ऑयल आता है। जबकि इंडिया में वैसा नहीं है। इन इंडिया वी डो नॉट हैव मच ऑफ दी पेट्रोल माइंस। ठीक है। ऑयल माइंस, जो क्रूड ऑयल बोलते हैं हम, उसके माइंस हमारे पास नहीं है ज्यादा मात्रा में। कहीं कुछ मिल जाएगा बस। बट ईरान इलाके में बहुत ज्यादा है। पर जैसे कि हमने पढ़ा, वो, और ये जो है अपना कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वो नॉन रिन्यूएबल है, इनको रीफिल होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। तो जैसे कि अब हम देख रहे हैं, हमें बहुत सारे रिपोर्ट्स मिल रहे हैं कि पेट्रोलियम एंड ऑयल बहुत तेजी से, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, as the days are going on, the population is getting increased and increased. So hence, the usage of such products, the usage of coal, the usage of petroleum is also increasing day by day. So there won't be a day when the day is not far, is not that far, when these resources like coal and petroleum will get totally diminished. Okay, वो दिन दूर नहीं है जब जब कोल और पेट्रोलियम पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो हमें इन चीजों को, तभी चाहे वो रिन्यूएबल हो या फिर चाहे नॉन रिन्यूएबल हो, उन्हें हमें बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना है। ठीक है। सो फर्स्ट टाइप हमारी हो गई नेचुरल रिसोर्सेज की। सेकेंड टाइप पे अब हम आते हैं। रिसोर्सेज हमने पढ़े थे तीन टाइप के हैं। ठीक है। कौन से थे? नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। ठीक है। उसमें से नेचुरल हो गया, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड मतलब नेम ही हमें बताता है, विच इज मेड बाय ह्यूमन। ठीक है। समटाइम्स द नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम resource only when their original form has been changed.
Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resource. ठीक है? So इसका एग्जाम्पल बताया गया है आयरन ओर, जो कि एक मिनरल है, जो कि हमें मिनरल फॉर्म में मिलता है। पहले वो रिसोर्स नहीं हुआ करता था जब भी ह्यूमंस इतने सिविलाइज नहीं थे। अर्लियर व्हेन ह्यूमंस वेर, when they were not so civilized, when they do not know how to extract the minerals, at that time iron ore was not a useful or it was not called as resource. But when human learned how to extract iron from the iron ore, it became a resource. In a similar way, technology is also a human made resource. In the very first class we have discussed what is technology, how it is a resource. So refer to that class if you have doubt in this point. Okay. Next, so people like us use natural resources to make human-made resources, said Mona. Nodding in understanding, yes, said Raju. ठीक है, तो मोना कहती है जो हमारे जैसे आम लोग रहते हैं वो यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस का टू मेक ह्यूमन रिसोर्सेस। सो नेचुरल, कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेस से ही ह्यूमन रिसोर्स बनते हैं, ऐसे मोना कहती है। ठीक है, और ये बात सच भी है ना। जो अभी आयरन हो गया वो हमें जमीन से नेचुरल फॉर्म में मिलता है, तो वो एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स हो गया। पर जब हम उस पर अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जब मतलब ह्यूमन मेड, जब ह्यूमन उस पर वर्क करते हैं तो उससे एक रिसोर्स बनता है। तो वही बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से हमें वो नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिलता है। नेक्स्ट पार्ट इज ह्यूमन रिसोर्स। Okay, people can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill, and the technology to do so. तो हमें ये कहा जा रहा है कि जो कि पीपल है, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो जब नेचर का बेस्ट यूज करते हैं टू क्रिएट द रिसोर्स, कोई रिसोर्स बनाने की जब हम नेचर का बेस्ट यूज करते हैं तो हम बहुत ही सारी अच्छी चीजों का इन्वेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लॉसरी पार्ट में ह्यूमन रिसोर्स का मीनिंग बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी हियर, वेट, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स refers to number, that is quantity and abilities of the people। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स refers to the number, that is कितनी मात्रा में है, और abilities of the people, जो ह्यूमन बीइंग्स की काबिलियत है, और किस क्वांटिटी पे है, क्या क्वांटिटी में है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। Though there are differing views regarding treatment of humans as a resource, one cannot deny the fact that it is the skills of the human that help in transferring the physical material into a valuable resource। ठीक है, सो बहुत सारे लोगों का अलग अलग कहना है कि ह्यूमन को रिसोर्स मानना चाहिए या नहीं। पर एक बात तो सच है कि ह्यूमंस की जो स्किल, जो काबिलियत है, the skills of the human and the abilities of the human, that is the thing which helps the human in transferring the physical material, that is, or the material which doesn't have value, to get it transferred into a material which have some economic values। ठीक है, so next part, that is why human beings are so special resource। ठीक है, humans के पास skills है, एबिलिटीज है नई नई चीजों का आविष्कार करने की, इसीलिए ह्यूमंस को स्पेशल रिसोर्स कहा गया है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, जो इंसान की एजुकेशन होती है, मतलब जब हम नई नई चीजों को सीखते हैं, नई नई स्किल्स को सीखते हैं,
that helps in making people a valuable resource. So वही चीज इंसानों को एक valuable resource बनाती है. Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human development. ठीक है. ह्यूमंस की स्किल्स को इम्प्रूव करना ताकि वो और अच्छे से और बेहतर तरीके से रिसोर्स को क्रिएट कर सके, उसी को कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ठीक है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द प्रोसेस where the quality or the skill of the people is increased so as to create more and better resources. ठीक है. नेक्स्ट, कंजर्विंग द रिसोर्सेज. कंजर्विंग मतलब कैसे हम रिसोर्सेज को बचाकर यूज कर सकते हैं, कैसे हम उन्हें बचा सकते हैं. कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, कैसे हम उनको बचा कर रख सकते हैं. मोना हैड ए नाइटमेयर. नाइटमेयर मतलब उस मोना को एक बुरा सपना आता है. नाइटमेयर का मतलब है बुरा सपना. ठीक है. पहले हम एक ग्लॉसरी को पढ़ लेते हैं ताकि वो आगे जब आए तो हम उसका यूज देख सकते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Sustainable development means carefully utilizing the resources so that besides meeting the requirements of the present, also takes care of the future generation. Sustainable development का मतलब है carefully use करना resources का ताकि हम अपने requirements को भी satisfy कर सके और जो आने वाले generations हैं उनके लिए भी हम कुछ बचा सके. आए दिन हम देखते रहते हैं, एड आती है टीवी पे कि पेट्रोल फ्यूचर जनरेशंस के लिए नहीं बचेगा. So, sustainable development means utilizing the resources effectively in such a manner that we can save those resources for our future generations, for our coming generations also. Okay. So, अब हम इस पे आते हैं. Mona had a nightmare. She dreamt that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. तो वो सपने में क्या देखती है कि अर्थ पे जितना भी पानी है वो पूरा सूख गया है और सभी जितने भी झाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सभी कट चुके हैं. देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. तो वो अब जब झाड़ ही कट गए हैं तो ना ही छांव है. शेड मतलब तो छांव रहती है, ना ही छाव है, ना ही पीने के लिए पानी बचा है, ना ही कुछ खाने के लिए है. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. लोग यहाँ से वहां घूम रहे हैं. रोमिंग मतलब घूमना, सफरिंग मतलब तकलीफ झेलना. ठीक है. यहाँ से वहां तकलीफ झेल रहे हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं. किसके लिए? पानी और खाने के लिए, शेड के लिए, कहीं छांव मिल जाए. इतनी ज्यादा धूप हो जाएगी अगर सभी झाड़ कट जाए. आप सोच के देखिए, अगर ये सच्ची में होता है तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? आंसर इज बिग, a big no. आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे बिना पानी और खाने के. ठीक है. बिना पानी, छांव, पेड़ पौधे. That's when I have said in the beginning of the session that we must conserve we must conserve the resources and we must use the resources efficiently. Now let's come back to the story. She told her mother about the dream. मोना अपने मदर को बताती है कि उसने ऐसे सपना देखा. अम्मा, can this really happen? She asked. वो पूछती है, अम्मा सच्ची में क्या ये हो सकता है? Yes, अम्मा replied. अम्मा कहती हैं, हाँ बेटा ये सच में हो सकता है. कैसे? If we are not careful, that even renewable resources can become very scarce and non-renewable ones can definitely exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lots, replied अम्मा. अम्मा कहती हैं अगर हम रिसोर्सेस को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस है वो स्कैर्स हो जाएंगे, मतलब बहुत कम मिलेंगे, कभी कभार मिलने लगेंगे. एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड. और जो नॉन रिन्यूएबल है वो खत्म भी हो सकते हैं. ठीक है. तो राजू पूछते हैं व्हाट कैन वी डू अबाउट इट. अम्मा कहती हैं लॉट्स, मतलब हम इसके बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या क्या कर सकते हैं.
तो using resources carefully and giving them time to get renewed is called as resource conservation. ठीक है, रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना और उन्हें टाइम देना, फिर से वो रिफिल हो जाए, फिर से वो रिन्यू हो जाए, ताकि हम उसे फिर से दोबारा यूज कर सके जब हमारे को जरूरत हो, और वो इतनी मात्रा में हो कि वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, so in simple terms, using resources carefully and giving them the time to get renewed is called as resource conservation. Suppose we are using the water, we must use the water carefully. That means without wasting the water, we should use it, and we should give it, we should give the, we should give the time to nature to renew it. ओके, ऐसा ना हो कि हम बस पानी का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते जाए कि नेक्स्ट सीजन की बारिश आने से पहले ही हमारे पास जितना पानी है वो पूरा खत्म हो जाए। This regarding this, we also come across this when we have summer season in our country. In many of the metropolitan cities like Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, groundwater used to get uh, exhausted during the summers. Okay, why? Because we use the groundwater so extensively that the available water is wasted in large quantities, and we do not give much time. That means before the rain season comes, we utilize the entire water. ठीक है, नेचर ने हमें बहुत सारा पानी दिया है ताकि हम 6 महीने आराम से उसका अगर हम सही से यूज करते हैं तो 6 महीने आराम से चल जाएगा। बट नहीं, हम उसका इतना वेस्ट करते हैं, इसे बहा देते हैं, कहीं जगह नल खुले छोड़ देते हैं। अगर कहीं खुला देखते हैं तो उसको हम बंद करने का भी नहीं सोचते, अरे बह रहा है बहने दो, बहुत जा रहा है। ऐसे नहीं चलेगा, आने वाले दिनों में आपको पानी में देखने को भी नहीं मिलेगा अगर हम इसी तरीके से करेंगे। तो फिलहाल अपने लेसन पे आते हैं। रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना और उन्हें टाइम देना, वापस से वो रिन्यू हो जाए, उसे कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज द रिसोर्सेज ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, बैलेंस करना अपने नीड को टू यूज द रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। बैलेंस मतलब वही, जितना हमें जरूरत है उतना ही यूज करना और फ्यूचर के लिए बचा के रखना, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करना और उसे टाइम देना ताकि वो फिर से रिन्यू हो, उसे कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। और अपने नीड्स को बैलेंस करना और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, सो ध्यान से पढ़िएगा। There are many ways of conserving the resources. Each person can contribute by reducing consumption. So वो कहते हैं कि बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्स कंजर्वेशन के। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट, सभी पर्सन उस पे हिस्सा ले सकते हैं। कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं? बाय रिड्यूसिंग द कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब उसका जो यूज है उसको हम कम कर सकते हैं, जब भी जरूरत हो ना ही यूज कर सकते हैं। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द थिंग, और रिसाइकलिंग करना, अगर कोई भी चीज है अगर वो हमें इतनी ज्यादा अभी यूजफुल हमारे लिए नहीं रही है तो उसको रिसाइकल करते हैं प्रॉपरली। ऐसे ही बस कहीं पे भी फेंक दिया, और प्लास्टिक का बॉटल है उसको हम ऐसे ही अगर एनवायरमेंट में फेंक देते हैं तो वो सालों साल ऐसी ही जमीन में पड़ी रहेगी। ठीक है, और कचरा बढ़ता रहेगा, और तो और वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं खराब करते जाएगी। इसके बजाय हम जो रिसाइकलिंग मशीन्स आती हैं, प्लास्टिक रिसाइकल अगर हम उस पर डाल देते हैं तो वो प्लास्टिक की बॉटल प्रॉपरली रिसाइकल होगी, और इस तरीके से हम एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। और एक पॉइंट क्या दिया है, रीयूजिंग द थिंग। कोई भी एक चीज है हम उसको ज्यादा से ज्यादा बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं,
उसको बस एक बार यूज करके फेंक नहीं देना है। अगर उस चीज का फिर से इस्तेमाल हो सकता है तो हम उसे यूज करते हैं ताकि ज्यादा कंजम्पशन ना हो। ठीक है। अल्टीमेटली मेक्स द डिफरेंस बिकॉज ऑल अवर लिव्स आर लिंक्ड। ठीक है। तो हम एक साथ जब चीजों को करेंगे तो बहुत सारी बचत हम कर सकते हैं। ठीक है। आइए आगे के पार्ट को हम पढ़ते हैं। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags, old newspapers। ठीक है। पुराने न्यूज़पेपर से वो बच्चों ने शॉपिंग बैग्स बनाए। डिस्कार्डेड द क्लोथ्स, किस किस चीजों से बनाए हैं? मेड पैकेट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स। उन्होंने बास्केट्स बनाए न्यूज़पेपर से और पुराने कपड़ों से बास्केट्स बनाए, और जो बाम्बू स्टिक्स पड़े थे जो कि उनके पास यूज नहीं हो रहे थे उनसे उन्होंने बास्केट्स बनाए, शॉपिंग बास्केट्स। ठीक है। इसी ऐसे ही हम न्यूज़पेपर्स को फेंक देते, पुराने कपड़ों को फेंक देते तो उनका यूज नहीं होता था। इसके बदले उन्होंने उसका इस्तेमाल करना चाहा। अच्छी बात है ना? आप भी ऐसा जरूर कीजिएगा। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa. To save our resources and keep our earth alive। ठीक है। इससे क्या होगा? हमारे रिसोर्सेज की बचत भी होगी और हम अपने अर्थ के रिसोर्सेज को बचाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। तो और दो तीन लोगों को उन्होंने अपना नाम बताया है। जेसी जी कहती हैं अब से मैं पेपर को केयरफुली यूज करूंगी और वेस्ट नहीं करूंगी। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर शेक्स। क्यों वेस्ट नहीं करेंगी वो? क्योंकि तो पेपर बनाने में बहुत सारे झाड़ों को कट किया जाता है तब जाके हमारे पास पेपर बनता है। तो उस पेपर की हम केयरफुली यूज करेंगे ताकि उसका पेपर का ज्यादा यूज, नए नए पेपर्स का ज्यादा यूज ना हो और ज्यादा से ज्यादा पेड़ ना कटे। ठीक है। I will use that electricity, I will see that electricity is not wasted in my house, shouted मुस्तफा। मुस्तफा जी कहते हैं मैं अपने घर पे ध्यान रखूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। ठीक है। मैंने जैसे कहा था कि पानी जब तेज रफ्तार से बहता है, हाँ, तो हम उनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पानी से पानी बनता है। और कोल जो रहता है, कोल को जब हम जलाते हैं उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको हम कहते हैं थर्मल पावर। तो ये हमारे रिसोर्सेस हैं। हम अपने घर पे देखते हैं, हम जिस रूम में नहीं बैठते हैं वहां पे ऐसे ही लाइट पंखे चालू रहते हैं जहां पे हमें यूज नहीं होता है। और जब भी सपोज कॉलेज और स्कूल हो, क्लास छूट जाती है, तब भी ऐसे ही पंखे लाइटें कई देर तक जलती रहती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वेस्ट ना हो, जहां पे जरूरत हो हम वहीं पे इस्तेमाल करें, जब यूज ना हो तो हम स्विच ऑफ कर दें। ठीक है। ओके। सो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है। हम इस पे आते हैं पहले। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स है आइए हम पढ़ते हैं। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि जो रिसोर्सेस है केयरफुली बैलेंस करना है अपने नीड्स को और फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर हमें बचा के रखना है तो रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जो भी लाइफ के फॉर्म्स हैं, मतलब अलग अलग जीव हैं, उनकी रिस्पेक्ट और उनकी केयर करनी है। अभी हम सबको पता है झाड़ जो पेड़ पौधे हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, पर हम उनको केयरलेसली अब देखते हैं। अरे कट रहा है, कटने दो। नहीं, अगर झाड़ कट जाएंगे आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? झाड़ कट जाएंगे, पूरा जो नेचर का साइकिल है वो बिगड़ जाएगा। तो रिसोर्सेज भी आपको ठीक तरीके से नहीं मिलेंगे। कोई भी एनिमल है, हर एक एनिमल का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है नेचर में। आपने पढ़ा होगा साइंस में जो लाइफ साइकिल होती है, एनिमल लाइफ साइकिल, नेचर लाइफ साइकिल। ठीक है। उस पे पढ़ा होगा एनिमल्स, वाटर, ह्यूमन बींग्स का क्या रोल है। सो हर एक लाइफ, जो हर एक फॉर्म ऑफ लाइफ है, हर एक ऑर्गेनिजम्स को हमें रिस्पेक्ट करना है और उनका देखभाल करनी है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ डाइवर्सिटी और वाइटलिटी मतलब
जो जितने भी डाइवर्स मतलब अलग अलग तरीके के रिसोर्सेस हैं उसको बचा के रखना है। कंजर्व मतलब बचाना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। मिनिमाइज मतलब कम करना। डिप्लीशन मतलब जो घट रहा है नेचुरल रिसोर्सेज, वो चीज को हमें कम करना है। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी हैव टू मिनिमाइज। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। मतलब जैसे कि मैंने कहा पानी कहाँ पे भी वेस्ट हो रहा है वो हमें देखना है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, वो हमारा पर्सनल एटीट्यूड है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। देखो ये चीज खुद से आपको अंदर से समझना होगा। किसी अगर कोई सामने वाला कहेगा तो आपको लगा अरे ये तो भाषण दे रहा है, नहीं, आपको उस चीज की अहमियत खुद से समझनी होगी, उसको खुद से एहसास करना होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम योर ओन। If another person tells you, you might be thinking that he or she is giving you the lectures. No, you should on your own, you should understand what is the importance of all these things, and you should act accordingly, and you should change your environment if you are acting carelessly. Okay. Enable communities to care for their own environment. ठीक है, जो भी communities मतलब जो भी हम हमारे आसपास के लोग रहते हैं उनको भी हमें अवेयर करना है। उनको भी हमें सिखाना है कि वेस्टेज ना हो रिसोर्सेस का। ठीक है। ओके। सो अभी आगे देखते हैं क्या है अब हमारे लेसन में। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। आशा कहती है मैं घर पे ध्यान रखूंगी कि वाटर वेस्ट ना हो। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस। हर एक बूंद पानी की प्रेशियस है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, चार्ल्स द चिल्ड्रन। ठीक है, हम एक साथ बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एक साथ सभी बच्चे बोलते हैं। These are the some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How you are going to help in conserving resources? So ये तो हमें story के through they have said that Mona, Raju and their friends will do all these things. So let me know in the comment section what are the steps you going to take to conserve the resources. Okay. The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. So, entirely, the future of our planet and its people, that means the people who are, who will survive in the coming generations, is linked with our ability to maintain and preserve the life support systems. It totally depends upon how we conserve the resources. If we do not conserve resources, our coming generations will not get those resources. So it is totally depending on ourselves to take care and preserve the resources. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable. The diversity of life on earth is conserved. That means all the resources are, you know, is used properly. The diversity of the life on the earth is counted. That means the different forms of life are conserved. That means they are taken care of. The damage to the natural environment system is minimized. Here I can say the damage to the natural is not only minimized, we should ensure that it is totally get stopped. It is high time that we should not think only to the extent of minimizing it. It is time we should entirely stop damaging our environment. Okay. So this is it for the today's class. Hope you have liked this session. Hope you have understand this session. If you have any doubts, do let me in the comment section. I will try my level best to clear all your doubts. And please keep visiting the description section of these videos. I will be posting all the links regarding the upcoming sessions, regarding the previous sessions in the description section. So please be in touch with the description section. Okay, so this was it for today's session. Thank you for listening to me. Take care.